morning, sir. Good morning, sir. Good morning. ये डिस्टर्ब हो जाएंगे. Good morning, Good sir. morning, Good sir. morning, Good sir. morning, Good morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. How are you all? How are you all? Hmm? Hello. My voice is clear now? Yes, sir. Yes, sir. Hmm. Yes, sir. How are you? Yes, sir. You all are Fine, sir. Good morning, sir. Fine, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Very, very good morning to you all. Good morning, sir. Morning. Abhishek Sani. Now, I hope you all are with your new book, Snapshot. Yes, sir. Good morning. Morning. Yes, sir. Let's start the new chapter, the summer of. सर अभी आप बोले थे ना डिस्कशन करने के लिए. हाँ, डिस्कशन करने के लिए बोले थे. कोई डाउट है उसमें? Do you have any? No, doubt? sir. That कोई डाउट नहीं है? So on the basis of No, that, sir. on the basis of that chapter, I'll put questions to you, but not today. Okay? Later. Okay, sir. Later, whenever we will complete this chapter, na, then both chapter we will discuss together. Okay? Yes, sir. Any doubt? ठीक है. Okay. Actually, reason behind it, na, the questions whatever I prepared for you to discuss on the previous chapter. Actually, right now, I left that paper. I could not bring. So that's why I postponed today's discussion work for the next days. ठीक है सर हम लोग कर लेंगे अगली बार कर लेंगे. हाँ. And if you have any doubt, then you may ask me, okay? Through my personal WhatsApp number. Okay? Okay, sir. Now the summer of the beautiful white horse. Before starting this chapter, composed by William Serron, before starting that chapter, first of all, I would like to ask a few questions regarding the topic which is related to this chapter. Okay? What we expect to a innocent child. Child is obviously by their nature innocent. So what we expect, whether they are liar or honesty. Honest. Honest? बच्चे झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बच्चे झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं सर. नहीं बोलते हैं, सर. Listen, छोटे बच्चे नहीं बोलते हैं. नहीं बोलते हैं. तो हम उन बच्चों No, की sir. बात नहीं बोलते हैं. कभी बोलते हैं सर. हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनको जो अपने डेली रूटीन के लिए भी डिपेंड रहते हैं किसी दूसरे के ऊपर. हम तुम जैसे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. बच्चे तो तुम लोग भी हो. You all are also children, but sometimes you try to tell a lie with your parents also. You often try to make them bluff also. Am I right or wrong? Yes, Right. Right, sir. Right, sir. Right now this is not offline classroom. एक common question है मेरा सबसे आपसे to you all. एक सवाल का जवाब बताओ जितने लोग बता सको. सच बताना कि तुम में से कितने लोग हो
जो अपने पेरेंट्स से कभी झूठ नहीं बोलते हो? कोई नहीं है सर। मैं Never. सर मैं सर भी सर कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। कोई नो सर Yes, नहीं है sir. सर। कोई नहीं है। अच्छा, अगर कोई नहीं है तो क्या ये सही बात है? इज इट ट्रू? नो सर मैं नहीं बोलती। कौन है? मैं भी नहीं बोलती हूँ सर। सर अगर कभी बोलते भी हैं तो फिर तुरंत बता हम भी भी नहीं देते बोलते हैं। हैं, सारी बात पेरेंट्स को बताते हैं। देखो बेटा, अगर यस सर। if you all are honest towards your parents, and if you all are honest towards your present, both P, parents and present, अगर आप सब अपने माता पिता के प्रति वफादार हैं और अपने प्रेजेंट यानी कि वर्तमान प्रेजेंट टाइम के प्रति अगर आप सब वफादार हैं, तो definitely you will do something in your future. If you will bluff to your parents, if you will bluff to your present time, it means indirectly you are bluffing to yourself. अगर आप अपने पेरेंट्स को, आप अपने वर्तमान टाइम को, जिस टाइम में आप हैं उस टाइम में अगर आप ब्लफ दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि you all are bluffing to you yourself indirectly. बात समझ में आई? Are you getting? यस सर। हाँ, यस sir. सर। अगर बोलते हो, Yes, sir. अगर बोलते हो, जो नहीं बोलता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जो लोग बोलते हैं तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट यू शुड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर पेरेंट्स एंड यू शुड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर प्रेजेंट। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। सिर्फ एक अच्छी आदत डेवलप करो अपने लाइफ में कि झूठ मत बोलो। चाहे कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशंस, कोई भी सर्कमस्टांसेस तुम्हारे लाइफ में आए, यू नेवर ट्राई टू टेल अ लाई विद योर एनीबॉडी। बस एक काम करो कि झूठ मत बोलो। झूठ नहीं बोलोगे तुम्हारी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी। अगर तुम झूठ नहीं बोलते हो, तो मम्मी पापा से कौन झूठ बोलता है? हैं? मम्मी पापा से कौन झूठ बोलता है सर? जो बोलता है वो खुद जानता है, क्योंकि ना मैं किसी का क्योंकि मैं ना किसी को सर्टिफिकेट बांट रहा हूँ और ना मैं किसी से सर्टिफिकेट ले रहा हूँ। अपन पत्र ले ली ना। राजवीर सिंह, यस सर। बात समझ में आई? ना मैं किसी को सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि ये बच्चे हैं जो झूठ नहीं बोलते हैं, और ना मैं किसी से सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि whatever the topic I touched right now, this topic is related to our first chapter of Snapshot. And secondly, this is the most important thing for our life. बस एक काम करना है कि झूठ नहीं बोलना है। महान बनने के लिए कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, सिर्फ एक काम करो कि तुम झूठ मत बोलो। ठीक है? बात समझ में आई? यस सर। कितने लोग फॉलो करेंगे? सब लोग करेंगे। अच्छा चलो Sir, try. ठीक है। बस इसको हम नहीं चेक करेंगे, आई विल नॉट चेक इट, यू योरसेल्फ चेक योरसेल्फ। ठीक है? यस सर। आप खुद इस चीज को चेक कीजिए कि वट एवर यू सेड टुडे, वेदर यू विल कंटिन्यू इट इन योर डेली रूटीन लाइफ और नॉट, टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। ठीक है? यस सर। द समर Yes, ऑफ sir. ब्यूटीफुल white horse. This chapter is, now listen. This chapter is related to the two poor Armenian boys. आर्मेनियन एक कबीले का नाम है, एक ट्राइब का नाम है। This word tribe has been used here in this chapter. Tribe means kabila.
You all are acquainted with this word, kabila. Though this story is about two poor, kamzor, गरीब Armenian boys who belong to a tribe, जो कि एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं, एक ऐसे कबीले से बिलोंग करते हैं, एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते हैं, whose hallmarks are trust and honesty. Whose hallmark is trust and honesty. ठीक है? ये दो बच्चे जो आर्मेनियन कबीले से बिलोंग करते हैं, उनका हॉलमार्क जो है वो ट्रस्ट एंड वर्दी है, वो बेस्ड ऑन ए ट्रस्ट एंड वर्दी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू लिसनिंग? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो उनका हॉलमार्क्स क्या है? उनका हॉलमार्क्स है, हॉलमार्क्स किसको कहते हैं? Trust and honesty. ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. हॉलमार्क्स किसको कहते हैं? हम जाते हैं मार्केट में कोई सामान लेने, और अगर किसी सामान पे ISI मार्क लगा होता है तो हम समझ जाते हैं कि ये सामान अच्छा है. ठीक उसी तरीके से इनके साथ है कि इनका जो हॉलमार्क्स है, इनकी आइडेंटिफिकेशन. देखो, बहुत बड़ी बात राइटर कह रहा है, विलियम शेरॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? इनकी ऑनेस्टी है, इनका ट्रस्ट है, इनका विश्वास है, इनकी ईमानदारी है. और जिसकी पहचान उसकी ईमानदारी और जिसकी पहचान उसका विश्वास होता है, उसको समाज में किसी और पहचान की, वो व्यक्ति, दैट पर्सन डज नॉट रिक्वायर्ड एनीथिंग इन द सोसाइटी. वो व्यक्ति समाज में कहीं खड़ा होता है तो उसकी ऑनेस्टी, अगर उसकी ऑनेस्टी के बारे में लोग जानते हैं, उसकी सिंप्लिसिटी के बारे में लोग जानते हैं, उनको अगर पब्लिक को, सोसाइटी को ये बात पता है कि दिस पर्सन इज द ऑनेस्ट मैन, तो उसका समाज में कोई भी काम रुकने वाला नहीं होता है. बड़ा से बड़ा काम उसका समाज में बहुत ही आसानी के साथ हो सकता है. इट डज नॉट रिक्वायर्ड वेदर ही हैज मनी इनसाइड ऑफ हिज पॉकेट और नॉट, वेदर ही हैज बैंक बैलेंस और नॉट. उसके पास बैंक बैलेंस है कि नहीं है, उसके पॉकेट में पैसे हैं कि नहीं है, it does not matter. The main important thing is here that he is known by his shoes. एक कहावत है ये कि man is known by his shoes. मतलब कि इंसान अपने कैरेक्टर से जाना जाता है. कैरेक्टर बहुत बड़ी चीज होती है. कैरेक्टर इज, कहते हैं ना कि कैरेक्टर इज प्रेशियस देन ऑर्नामेंट्स, कैरेक्टर इज प्रेशियस देन गोल्ड, कैरेक्टर इज प्रेशियस देन डायमंड्स, character is precious than all the things, whatever the things are exist in the society, in the world. दुनिया में कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट करती है तो उन सारी चीजों से इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है कैरेक्टर. एक इंग्लिश में एक सेइंग भी है, ये बात कही भी जाती है कि इफ money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. अगर आपके पास पैसा चला गया, आपने अगर पैसा खो दिया, आपके पैसे की चोरी हो गई, तो कुछ नहीं गया. आप फिर पैसे को अर्न कर लेंगे. अगेन यू विल अरेंज द मनी. अगर आपकी सेहत खराब हुई, अगर आपका हेल्थ खराब हुआ, तो कुछ गया, क्योंकि सेहत से ही सब कुछ है. जान है तो जहान है. ये इस कोरोना काल में अक्सर लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, आइकॉनिक पर्सनालिटी, प्राइम मिनिस्टर एंड डॉक्टर्स एंड अदर्स आर आल्सो सेइंग दिस वर्ड, जान है तो जहान है. इफ लाइफ इज देयर, वी कैन मैनेज एवरीथिंग. एंड थर्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू एग्जिस्ट इन द सोसाइटी. इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट. अगर आपका कैरेक्टर, अगर आपका चरित्र खराब हो गया तो आपका सब कुछ चला गया. अब आप ना घर के रहे और ना सोसाइटी के रहे. Neither you will exist in the inside of your house, nor you will exist in the society, in the world. Nobody will identify you. Who are you? So here in this chapter, William Saroyan
pointing, insisting about the particular tribes, and that tribes identification is trust, honesty. Is that clear? यहां तक बात समझ में Yes, आई? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now let's come to the point. One day back, अब इनकी ऑनेस्टी के बारे में देखिए हम चर्चा कर रहे हैं. क्या है, एक जो ट्राइब है उस ट्राइब का नाम है गैगरोलियन. जिस कबीले की बात हो रही है उस कबीले का नाम है गैगरोलियन. उस गैगरोलियन ट्राइब्स की आइडेंटिफिकेशन है ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. और ये दोनों बच्चे उसी गैगरोलियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं. क्या होता है, कौन सी घटना घटती है, क्यों इस टाइटल का नाम रखा गया है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, गर्मी का एक बहुत ही खूबसूरत सफेद घोड़ा. One day back, there is the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificent. जब मेरी उम्र 9 साल की थी, it was the time of the character when he was 9 years old. तो वो छोटे बच्चों का जो वक्त होता है, जिस वक्त से आप खुद गुजर रहे हैं, दैट इज द स्टूडेंट लाइफ. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ योर लाइफ. जिंदगी में हम सब लोग अपने स्टूडेंट्स लाइफ को मिस करते हैं, वो समय जो बीत जाता है. बिकॉज देयर इज नो प्रेशर एट ऑल. आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है सिवाय इसके कि आपको अपनी जिंदगी, अपना करियर को बिल्डअप करना है. और आपके खुद के करियर को बिल्डअप करने के लिए, आपको स्टैंड करने के लिए पूरी सोसाइटी आपके लिए खड़ी रहती है. फ्रॉम हाउस टू स्कूल, आपके घर का हर मेंबर, कोई नहीं चाहेगा आपके घर का मेंबर कि आप ना पढ़ें. कोई नहीं चाहेगा कि आप एक अच्छे सोसाइटी के मेंबर ना बने. कोई नहीं चाहेगा कि आप एक अच्छे पोजीशन पे ना जाएं. आपके स्कूल का कोई भी सब्जेक्ट टीचर नहीं चाहेगा कि आप अच्छे मार्क्स से ना पास हो. आप समाज में पढ़ने लिखने के बाद समाज के एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ना हो, ऐसा कोई नहीं चाहेगा. सबकी विशेष आपके साथ होती है, आपके रिलेटिव्स की, आपके पास पड़ोस की, आपके सोसाइटी की. हर आदमी चाहता है कि आप आगे बढ़ें. तो ये लाइफ जो है, द लाइफ दैट यू लीड्स राइट नाउ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ ऑफ योर होल लाइफ. आपकी पूरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पल, सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट चल रहा है अभी, जब तक आपकी स्टडी चल रही है. आपके घर का कोई फैमिली मेंबर ये नहीं कहता है कि आपको घर के खर्च चलाने हैं, घर में आप कौन सी चीज कैसे मैनेज होगा. नोबडी इज आस्किंग टू यू, ऑल आर आस्किंग टू यू, ऑल आर फोर्सिंग टू यू दैट यू स्टडी. You should study, you should give proper time to your study. If you are giving it, that is good for you. If you are not giving it, the result will come in your future. So when he was at the 9 years old, one day back, there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificent and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke up me tapping on the window of my room. लाइट चली गई सर, आवाज नहीं आ रही. आ गई बेटा, इट हैज कम. ठीक है. तो जब मैं 9 साल का था, क्या था इनकी कंडीशन? व्हेन ही वाज 9 years old
एरम नाम है इनका, आगे पता चलेगा इनका नाम एरम है, जिसकी उम्र 9 साल है। जब 9 साल के थे ये, तो इनके साथ कंडीशन ये थी, सबके साथ ऐसा होता है कि द होल वर्ल्ड वाज सरप्राइजिंग फॉर हिम, फुल ऑफ मिस्टीरियस, फुल ऑफ मैग्निफिसेंट, बहुत ही खूबसूरत पूरी दुनिया इनके लिए थी, और वो एक खूबसूरत कल्पना की तरह थी। जितना खूबसूरत कल्पना, जितना खूबसूरत इमेजिनेशन हम कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हिज कजिन नेम्ड मुराद, रिमेंबर द नेम, ठीक उसी समय अप्रोक्सीमेट, नॉट अप्रोक्सीमेट, एट 4 AM, ये उस समय की बात है जब एरम एक कल्पना कर रहे थे कि जब मेरी उम्र 9 साल की थी, when I was 9 years old and the whole world was a very nice, very imaginable, magnificent, decent, the things for that we can imagine. And at the same, in that particular period of life, it was 4 o'clock, ये लगभग 4 बजे का समय था, जब इनके कजिन मुराद विंडो को टैप करते हैं। और इनके बारे में भी एक लाइन ये बताया गया है यहाँ पे, वन थिंग हैज बीन क्लियर्ड दैट he was by nature, by his character, Murad was the eccentric fellow for everybody, but not for him. Arman Singh, just he raised his hand, again removed his, what happened? खैर, तो मुराद के बारे में इन्होंने एक लाइन ये बताया था कि मुराद who was considered crazy by everybody who knew him except me. मुराद एक ऐसा इनका कजिन था कि he was the eccentric, he was crazy for everybody, हर आदमी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था, but for him he was as he himself, उसके लिए वो खुद वैसे ही था जैसे कि वो खुद। Came to my house at 4 in the morning and woke up tapping the window of my room. 4 बजे वो मेरे दरवाजे पे आया, विंडो को खटखटाया, टैप किया, मुझे जगाया। He said, Aram, Aram. I jumped out of bed and looked out of the window. जब मैंने आवाज सुनी, when I listened my name, Aram, Aram, I listened the tapping on the window. I jumped out from my bed and peeped out of the window, and I was surprised. What did I see? I could not believe what I saw. I could not believe what I saw. Means the things which was in front of him at that time, this thing was not acceptable for him. It was like a dream for him, because he was the child fellow and he used to dream. He used to beautiful dream in his dream, but it was the real thing which was like a dream for him. ये उसके सामने की घटना है जो कि उसके ऊपर विश्वास नहीं था, उसको लग रहा था कि ये एक सपना ही है उसके लिए। जब वो अपने बिस्तर से निकला और बाहर विंडो पे देखा, I could not believe what I saw. मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने जो कुछ देखा। It was not morning yet, but it was summer. अभी सुबह, yet, देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, yet, YET. yet मतलब फिर भी, मैंने ग्रामर में डिस्कस किया था स्टिल और डिफरेंस बिटवीन स्टिल एंड येट। स्टिल जो स्टिल जो पास्ट से प्रेजेंट तक आता है, और पास्ट जो, और येट मतलब प्रेजेंट से फ्यूचर तक की बात होती है। तो इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक, not many
minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. अभी सुबह नहीं हुई थी, अभी अंधेरा ही था, अभी पूरी दुनिया में हल्की हल्की अभी सुबह हो रही थी, लेकिन मैं खुद एरम खुद कंफर्म था उस चीज को देख करके कि वो सपने में नहीं है. It was the thing he saw. It was not the part of his dream. It was the part of his real life. क्या देखा उन्होंने? What did he see? My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. उन्होंने देखा कि my cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. उन्होंने देखा कि मेरा जो भाई है, मेरा cousin, वो एक सफेद खूबसूरत घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है. अब यहाँ पे बात ये है कि सफेद खूबसूरत घोड़े पे बैठा है. दिस इज द सरप्राइजिंग थिंग फॉर एरम. वाई? बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मुराद. सफेद घोड़े पे बैठ करके मुराद का आना ये सरप्राइजिंग उतना नहीं है जितना कि मुराद का, जितना कि पर्टिकुलर मुराद का सफेद घोड़े पर बैठा होना ये उनके लिए सरप्राइजिंग थिंग था. क्यों? बिकॉज एरम, मुराद, even his tribe, all the members of his tribe was not able to sit on the white horse. उनके पास घोड़े पे बैठने की सलाहियत नहीं थी, उनके पास घोड़े पे बैठने की कैपेसिटी नहीं थी, हैसियत नहीं थी. बिकॉज दे बिलोंग्ड टू पुअर ट्राइब्स. बड़ी मुश्किल से दो वक्त का खाना उनको मिल पाता था. इट वॉज द कंडीशन फॉर देम. और यहाँ पे मुराद सफेद घोड़े पे बैठा हुआ है. ये थोड़ा सा उनके लिए, एरम के लिए एक्सेप्टेड नहीं था. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई एज. उसको विश्वास नहीं हुआ, वो अपने सिर को बाहर निकाला, अपने आंखों को मला कि कहीं मैं सपने में तो नहीं हूं. Even I was not in the dream. He was confirming himself. वो अपने आप को कंफर्म कर रहा था. पाया क्या? Yes, he said in Armenian. उसने कहा कि हाँ, it is a horse. कि हाँ ये एक घोड़ा था जो कि जिसके ऊपर मुराद सवार था. Yes, he said Armenian. It is a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. कह कि छोड़ो, अगर तुम जल्दी, if you want to ride it, अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो, अगर तुम सफेद घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो. Don't waste your time because we have very less time. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistaken. But this was more than even I could believe. तरह कि यहाँ मेरा भाई, मतलब मेरा भाई मुराद जो था वो एक बाय नेचर इस नेचर का था कि वो दुनिया की सारी चीजों को एंजॉय करने का शौक रखता था. He was fond of to enjoy all the things which were existing in the world. But it was not possible that Murad enjoy with a beautiful white horse because it was beyond his capacity. ये उसके कल्पना के परे तो नहीं था, लेकिन ये उसके इमेजिनेशन के पर, रियलिटी के परे था, उसकी कैपेसिटी के परे था. It was beyond his capacity. In the first place, my earliest memories had been memorized of horse, and my first longings had been longest to ride. First of all, सबसे पहले तो क्या था? सबसे पहले तो मेरी ये इच्छा थी कि मैं घोड़े की सवारी करूं. उसकी यादें, it was the first memories for him that he wanted to ride on it. और उसकी इच्छा यही थी कि वो अपने घोड़े की सवारी करे, घुड़सवारी करे. This was the wonderful part
फॉर हिम। यह एक वंडरफुल, एक सरप्राइजिंग पार्ट था उसके लिए। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। एक बहुत अच्छी बात थी कि वो घोड़े की सवारी करे, लेकिन सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या था? वी वर पुअर, हम गरीब थे। मैंने पहले बताया अभी आपको, हम गरीब थे। हमारे पास ये सलाहियत नहीं थी कि हम 2 वक्त का खाना प्रॉपर तरीके से खा सकें। घुड़सवारी कहाँ से करेंगे? जिसके घर में ठीक से कब खाने की व्यवस्था ना हो, वो घुड़सवारी और कार की सवारी कहाँ से करेगा? एंड इट वॉज द रियल थिंग फॉर हिम एंड ही हिमसेल्फ एक्सेप्टेड इट। दिस वॉज द पार्ट ऑफ दैट would not permit me to believe what I saw। और यही वजह थी, this was the reason। रीजन क्या था? कि गरीब होना। उसको पता था कि हम गरीब हैं। यही वजह थी उसकी गरीबी, उसकी पॉवर्टी, कि वो इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा था। he was not accepting it, he was not believing it, that whatever he saw, it was the real thing for him। उसने जो देखा कि मुराद घोड़े पे बैठ के आया है, घुड़सवारी के लिए उससे कह रहा है, ये उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। दिस वॉज द पार्ट विद दैट वुड परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी। अपनी गरीबी की परिभाषा बता रहा है। अरे वी वर पुअर, हम गरीब थे। कितने गरीब थे? हाउ मच पुअर दे वर? वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। Our whole tribe was poverty stricken। हमारी जो पूरी जो ट्राइब्स थी वो गरीबी को सफर कर रही थी। Every branch of Gagrolian family was living in the most amazing and comical poverty in the world। जो गगरोलियन, मैंने पहले बताया कि गगरोलियन एक कबीला है जिससे ये लोग बिलोंग करते हैं। तो ये बता रहे थे कि, तो एडम ये बता रहे हैं कि हमारे हम गरीब थे। कितने गरीब थे? तो उसके बारे में बता रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं थे। वी हैड नो मनी। और कंडीशन ये थी कि एवरी ब्रांच ऑफ द गैगरोलियन फैमिली, यानी कि हर गैगरोलियन परिवार का हर व्यक्ति was living in the most amazing and comical poverty in the world। वो पूरी दुनिया में गैगरोलियन फैमिली, गैगरोलियन ट्राइब पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड थी। पूरे वर्ल्ड में वो फैली हुई थी। लेकिन उनकी खासियत ये थी, द इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट, कि हर व्यक्ति, गैगरोलियन परिवार ही नहीं, गैगरोलियन परिवार का हर व्यक्ति पूरे विश्व में गरीबी, ऑनेस्टी के लिए जाना जाता था और उसका लोग मजाक भी उड़ाते थे। कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, नोबडी कुड अंडरस्टैंड वर वी एवर गॉट मनी एनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। कह रहा है कि हमारे पास तो हमारी गरीबी तो इतनी थी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि जिससे हम अपने 2 वक्त के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था कर सकें। यहाँ तक कि हमारे फैमिली के जो बुजुर्ग लोग थे, जो ओल्ड लोग थे, जो सीनियर लोग थे, वो भी नहीं। तो जो सीनियर थे, मीन्स दोज हु वर अर्निंग हैंड, सीनियर का मतलब यहाँ पे अर्निंग हैंड्स है, दोज हु वर अर्निंग हैंड्स, they were not able to fulfill the complete eating material at least 1 time or 2 times। तो what about us? जब हमारे घर के बड़े ही, हमारे परिवार के जो बड़े हैं, जो अर्निंग हैंड हैं, जब वो उस लायक नहीं थे कि वो अपने घर के अपने 2 वक्त के खाने के लिए प्रॉपर फूड का इंतजाम कर सके, तो हमारी बात ही अलग है। तो इट वॉज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, और इन सबके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, और इन सबके बावजूद हम फेमस थे। किस लिए? हम जाने जाते थे, हमारे, मैंने अभी पहले बताया था, हम जाने जाते थे। हमारी आइडेंटिटी यही थी
कि हमारी आइडेंटिटी यही थी कि हम ईमानदार थे। हमारी आइडेंटिटी यही थी कि हम ईमानदार थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। देखिए कितनी बड़ी बात है कि 11 शताब्दी तक, ठीक ना, लगभग अप्रोक्सीमेट 11 शताब्दी तक वो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली in what we like to think was the world. बस समझ में आई? 11 शताब्दी तक हम अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे और वो ईमानदारी ही हमारी वेल्दी थी, यानी कि उसमें हम सबसे ज्यादा अमीर थे। यानी कि अब ये बात समझो, यहाँ पे ये लाइन क्या कह रही है? कह रहा है कि 11 शताब्दी तक हम यानी कि गैगरोलियन फैमिली, गैगरोलियन ट्राइब्स पूरे वर्ल्ड में ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी। और हमारी यानी कि एरम की जो फैमिली थी वो उन पूरे वर्ल्ड वाइड गैगरोलियन फैमिली में सबसे ऑनेस्ट और सबसे वेल्दी फैमिली थी। तो जो सबसे वेल्दी फैमिली थी उनकी स्थिति ये थी कि वो प्रॉपर तरीके से चीजों को मैनेज नहीं कर पाते थे। We were proud first, हमें गर्व सबसे पहले था, और बाद में हमें अपने ईमानदारी पे। एंड आफ्टर दैट we believed in right or wrong, उसके बाद हम सही और गलत पे विश्वास करते थे। सबसे पहले हमें किस बात का गर्व था? कि हम ईमानदार हैं। ऑनेस्ट। यहां तक कोई डाउट? कहते हैं ना कि अगर किसी को जज करना हो तो आप उसको जज कीजिए कैसे? कोई मौका दे करके। यानी कि हम ईमानदार तब तक हैं, बाय वर्ड वी ऑल आर ऑनेस्ट, बाय सिचुएशन विल टेल यू हु इज ऑनेस्ट एंड हु इज नॉट। ईमानदार वही है जो अपने बुरे समय में भी ईमानदार है। यानी कि जब तक हमें क्या कहते हैं बेईमानी करने का मौका नहीं मिला तब तक तो हम ईमानदार हैं, और जब हमें बेईमानी करने का मौका मिला, जब हमें एक सिचुएशन मिला कि हम वहाँ पे डिसऑनेस्ट हो सकते हैं और डिसऑनेस्ट हो करके हम अपने पुअर कंडीशन को चेंज कर सकते हैं और फिर भी हम नहीं करते हैं, इसका मतलब कि हम ईमानदार हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? Are you listening? You are allowed to say. जंतुल फिरदौस, सौरभ, हाँ से बोलो। We were proud first, honest next, and after that believed in right or in wrong. None of us would take advantage of anybody in the world. Let's along steal. सब अपने बारे में बात करते हैं। We believe none of us would take advantage of anybody in the world. Let's alone steal. यानी कि कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में कभी किसी का फायदा नहीं उठाया,